नई सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार बनी है। एनसी के 5 विधायकों ने शपथ ली। मंत्री पद की शपथ ली गई। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ ही सकीना आयतू, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद डार, इन 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार बनी। एनसी के 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के साथ सकीना आयतू, सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद डार ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। SKICC श्रीनगर में यह पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता और INDIA गठबंधन के तमाम मंत्री मौजूद थे। तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के साथ ही सकीना आयतू, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद राणा और जावेद डार ने मंत्री पद की शपथ ली। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. I, Sakina Itu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Sakina Itu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may required for the due discharge of my duties as such Minister.
Satish Sharma, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Satish Sharma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Mata Di. मैं जावेद अहमद राना अल्लाह अज़्ज़वजल के नाम पर हल्फ पढ़ाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके ताई वफादारी बरतूंगा। ये कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालियत को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और शनासी के साथ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के लिए वज़ीर की हैसियत से अंजाम दूंगा। ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिना किसी को जानबदारी लगाओ अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं जावेद अहमद राना खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या शिकास किसी मामला जो मेरे जेल को लाया जाए या जिसका मुझे बतौर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर की हैसियत से इल्म हो कि इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा मासिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सरअंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। I, Javed Ahmad, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Javed Ahmad, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था हर सेक्शन को नुमाइंदगी मिलेगी, मैंने अपनी बात पूरी की। मैंने आपसे कहा था कि हर तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और मैंने अपनी वो बात पूरी की। 3 जगह अभी खाली हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी, मिल के चलेंगे।
और आइए आपको सुनाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। अल्लाह करे कि सरकार चले, दिल्ली मदद करे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर करे। It's a very big day, full of challenges for this government, and I hope this government will do what it had promised in the election manifesto. Right, so some slots have been left open as of now. Only 5-6 ministers have taken oath. How do you see that, sir? Others will also take over. Right. He will talk to you. Sir, Congress has decided to stay on. Leave it to Umar what he has to say. और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उमर को, उनके पिताजी को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कदम है। अभी और भी आगे बढ़ना है, कम से कम स्टेट की जो पावर्स हैं इनमें मिले। ये नहीं हो कि पावर किसी और के पास हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायक और मुख्यमंत्री हों। आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं यूपी में भी, अब वहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या कहेंगे? इलेक्शन अच्छा होगा और बीजेपी हारेगी। वहाँ पे जो सांप्रदायिक अभी दंगे हो रहे हैं, ये बीजेपी की कोशिश है, और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी तो समझदार है, इतना तो वो जानते हैं कि जब बीएलओ हटाए जाएंगे, कुछ अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे कि नफरत फैले, दूरियां पैदा हों, लेकिन इन दूरियों को पैदा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर बीजेपी को हराएगी। महाराष्ट्र में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा। अकेले में लड़ेंगे? नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन में। और आइए अब जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला के सियासी सफर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार की शुरुआत हो चुकी है। गांधरबल और बडगाम सीट से चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2009 में उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सीएम बने, जबकि 2015 में वे जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। 1999 में उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भी रहे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। वहीं उमर अब्दुल्ला ने 1998, 1999 और 2004 में 3 बार श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस उम्मीदवार आगा सैयद मोहदी को 70,839 मतों के अंतर से हराकर श्रीनगर सीट जीती। 1999 के लोकसभा चुनाव में उमर ने निर्दलीय उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को 36,859 हराकर अपनी सीट बरकरार रखी, जबकि 2004 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडवोकेट गुलाब नबी लोन को हराकर फिर से निर्वाचित क्षेत्र में कब्जा जमाया, और अब फिर से उमर के हाथों पूरे जम्मू कश्मीर की बागडोर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।